सब जन अपने तन सब जन उठाए हर एक जन अपने तन सब जन उठाए और आदि वचन देने की प्रार्थना करें। परमेश्वर को मंदिर की परमेश्वर के वचन में हमारे नाम का सुखा अपने समझा और अपने वचन को हमारे जीवन में अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना को पवित्र आत्मा जी ने नागल को पवित्र आत्मा जी ने नागल को हमारी भूमि में आया और मेरे मसीहा देते हुए नागल को मेरे खुदा मेरे उसी भाव में समझो मेरे परमेश्वर और यीशु मसीह आशीष के समर्थी नाम से मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर सबका प्रणाम मेरे बोले जय श्री कृष्ण परमेश्वर की बात करांगे ਅਸੀਂ ਇੱਕ वचन ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ एक पैराग्राफ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 18 अध्याय ਉਹਦੀ 1 आयत तो लेके ਅਸੀਂ 8 आयत तक पढ़ना है। उसने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸੀ और उसी नगर ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਵਿਧਵਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ मैं उसका बदला ले जाऊंगा। अजिहा ना होवे जो वो करी पूरी आन के मेरा सिर खावे। प्रभु ने आख्या सुनो कि यह बेइंसाफ हाकम की कहता है। फिर भला परमेश्वर अपने चुनिया होया दा बदला लेना देवेगा जेड़े रात दिन ओदी दुहाई दिंदे हन भावें ओ चोखा चिर उन्हां दी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਤਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਤਦ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨੀਚਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਨਾ ਕਰਨਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਸਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੌ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਸੌ ਜਾਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਗ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਸੌਵੋ ਨਾ। ਐਸਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਇਹ ਸੁਸਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਇਕਿਓਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆ, ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ 1537 ਨੰਬਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ और ਇਹਦਾ मतलब है कमजोर होना, फेल होना अपने दिल के अंदर। हालेलुया। असल च प्रभु यीशु मसीह कलीसिया ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ नहीं हो सकता। असी निराश हो जाते हैं कि शायद परमेश्वर मेरे तो प्रसन्न नहीं है,
शायद परमेश्वर मेरे तो खुश नहीं है, चाहे परमेश्वर ये करना ही नहीं चाहता, चाहे मैं इस काबिल ही नहीं है कि परमेश्वर मैंने ये बरकत दे सके, शायद मेरी जिंदगी इस तरह ही चलेगी, हुण ये तो वध कुछ नहीं हो सकता। पर परमेश्वर का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बरकत लेट है तो परमेश्वर वो देना नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया। असल जो यीशु मसीह इत्थे कह रहे थे कि अपने अंदर एक विश्वास बना के लगातार प्रार्थना करते रहो उस विषय के उत्ते। मत सोचो कि अगर मेरा जवाब नहीं आ रहा इसका मतलब मेरी प्रार्थना सुनी भी नहीं जा रही। परमेश्वर ताड़ी प्रार्थना नूं सुन रहा है। एक टाइम है जो परमेश्वर ताड़ी प्रार्थना नूं सुन के जवाब देगा, उसका उत्तर देगा, पर वो टाइम परमेश्वर जानता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुसी पहले दिन ही चर्च चाहो, मैं तुहानूं सिंपल एग्जांपल दिंदा हां। अगर डॉक्टर की पहली खुराक के नाल चर्च भी छड्डो, डॉक्टर की पहली विजिट के नाल तुसी डॉक्टर हो गए, 500 रुपया फीस लगी, उन्हें तुहानूं 10 दिन की दवाई दी, 10 दिनों के अंदर 10 दिन की दवाई खाने तो बाद तुसी ठीक हो गए, दोबारा जाओगे 500 लैके? अगर तुसी चर्च आए है ना, डॉक्टर भाई जिन्ना मर्जी गए, ये 6 महीने का कोर्स है जी, तुम पूरा करना है ना। जिदा मैनू पिछले दिनों कहा गया कि हफ्तेवार फिर आयो चैकअप कराने लिए, डॉक्टर ने मैंने खुद कहा कि तुहानूं लगेगा कि मैं अपनी जो पॉइंट वगैरह सैट करने ने लक दे सैट कर दिते ने, मेडिसिन खाओगे तुहानूं लगेगा कि तुसीं ठीक हो गए, पर तुसीं ठीक नहीं होए अजे, तुसीं आना है दोबारा फिर मेरे को। हुण सानूं लगा कि असीं ठीक है ना, डॉक्टर ने सैट करता सब 3 दिनों कोई दर्द नहीं, जिदा मर्जी दौरे भजो। और कल रात मैं फिर पेन तो कर रहा सी कि यार फिर दर्द निकल रही है, असी दोबारा कदे नहीं जाते, चाहे डॉक्टर ने भी कहा है कि यदा एक कोर्स है जी, तुसीं इहनूं कोर्स पूरा, असी कोर्स पूरे करने वाल ध्यान नहीं देंगे। असीं सोचते हैं अच्छा ठीक हो गए, हुण की जरूरत है जान की, वो तो वैसे ही पैसे बनाने लई बुलाउण डे वापस। अगर पहले दिन ही खुदा हर एक दे सारे ही मसले हल कर दे, अगले एतवार कौन आएगा? आएगा? अगर तुसी आ भी जाओ तो तुसी कहो कि नहीं नहीं पास्टर जी, अगर खुदा सारे हल भी कर देंगे ना, फिर भी आप चर्च ही आवांगे, फिर भी आप किते होर नहीं जावांगे, असीं खुदा नूं खुदा दा दर्जा देवांगे, पर तुसी कदे पक्के विश्वासी नहीं बनोगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि थोड़ी जी मुसीबत आई नहीं तुसी डिग जाओगे, विश्वास तो गिर जाओगे। पर अगर तुसी किसी चीज़ नूं मेहनत करके प्राप्त करोगे, टाइम लगेगा, प्रार्थना करोगे, फिर मसले हल होंगे, फिर मसले हल होंगे, तो फिर हुण इन्हां दिनां दे अंदर ना पवित्र आत्मा ने साडे चर्च में पिछले साल इस साल की शुरुआत से भी परमेश्वर ने अपना काम किया है ना। 8 साल बाद बेटा होया सुमन भाभी के घर, असीं उसका नाम गिदौन रखा है। पूरी बाइबल करनी है, उत्पत्ति तो लैके प्रकाशित वाक्या तक। जो मैं बच्चों के नाम रखदा तो कई मैनूं मजाक करते हैं, तुसीं बाइबल पूरी करके छड्डोगे, मैं कहा यही बाइबल पूरी करके छड्डांगे। हालेलुया, हालेलुया। अजे 2-3 होर आए ने अपने हत्थ च नाम, अजे तो बंदे धरती ते आउणगे ते उन्हां दे नाम भी देने ने। हालेलुया, हालेलुया। हुण वो बरकत 8 साल बाद मिली है और एक मेहनत तो बाद मिली है, फास्टिंग तो बाद, अपने आप नूं तोड़ के, अपने आप नूं सुधार के, फास्टिंग तो बाद, मेहनत तो बाद मिली। हुण उहदी एक कीमत है, सानूं पता है असीं किवें परमेश्वर दे कोलों उस बरकत नूं प्राप्त कीता है। हालेलुया, उहदे च परीक्षावां होईयां, मेरी परीक्षा हुई, आगुआं दी परीक्षा हुई, है ना, हर बंदा जो उस बरकत दे लई, कलीसिया दी परीक्षा हुई, उस परिवार दी परीक्षा हुई। कुछ ऐसे काम करने पे जेरे वो परिवार इस योग भी नहीं सी कि कर सके, पर उन्होंने करने पे क्योंकि परमेश्वर का आत्मा चाहता सी कि करन, स्ट्रगल किया, परीक्षा हुई। हुण वो परीक्षा च रह के वो बंदा मजबूत हो गया है। हुण उहदे कोल एड्डी वड्डी बरकत है कि सारी जिंदगी च शैतान कदे भी उन्होंने विश्वास तो डिगना चाहिए, डेग नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने पता है कि परमेश्वर का आत्मा काम करता है। हालेलुया। और यही अगर पहले दिन ही सब कुछ हो जाता तो मैं नहीं कहता कि अगर पहले दिन ही पहली प्रेयर च सुनी जाए तो तुहानूं उहदी कीमत पता नहीं, पर तुसीं मजबूत नहीं बनोगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे ने कि अगर किसी बरकत के अंदर देरी है तो निराश नहीं होना। हिम्मत, जी ट्रांसलेशन मेरे को लिखा, हिम्मत नहीं हारनी।
अपने आप च फेल नहीं होना। कई बार परमेश्वर के आत्मा ने भी कोई जवाब नहीं दिता होंदा कि मैं चंगा करांगा या नहीं करांगा, या काम होएगा या नहीं होएगा, असी अपने अंदर ही धार लेने हैं। ये नहीं हो सकता। बड़ी दुआ करके वेख ली। और मैं कुछ प्रैक्टिकल लोगों की जिंदगी च देखा है, प्रैक्टिकली तजर्बा है मेरा। कलीसिया एज अगुए मैं कलीसिया की जिंदगी च वेख्या है। कुछ लोगों के लिए बरकत तैयार होंदी है स्वर्ग च। 7 दिन का विषय सी, परमेश्वर पूरा तैयार है कि हाँ 7वें दिन काम डन कर देना है। स्वर्गदूत तैयार ने गिफ्ट फड़ के भी हाँ 7वें दिन जाके अगले बंदे को फड़ा देने। 6वें दिन बंदे लड़ पेंदे ने, रोजे च ही लड़ पेंदे ने, रोजे च गाली गलोच, रोजा बंद। 6 दिन हो गए कुछ नहीं होया, प्रार्थना बंद, तो वो उत्थे दा उत्थे ही रुक जाता है। हालेलुया, हालेलुया। असी अपने आप फेल करते हैं अपनी बरकत नूं, अपने आप। पर मैं अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो बाइबल च लिखा मसीह च की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। अगर एक विषय शुरू कर दिता सी कि असीं इस विषय उत्ते प्रार्थना करनी है, तो यीशु मसीह उस विधवा की कहानी तो सिखा रहे हैं कि हुण वेखो उत्थे दो गल्लां ने उत्थे लिखिया। वो बंदा जिहदे कोलों वो बदला लैण दे लई जांदी सी कि मेरा बदला लैके दे, जिहड़ा जज सी उस समय का। वो बंदे के दो कैटेगरियां यीशु मसीह ने दस्सिया, दा नाम नूम नहीं दस्सिया। 3 ने, एक उहदा अहुदा कि वो उस समय का जज सी, दूसरा कि वो ना तो परमेश्वर का डर रखता सी ते ना ही मनुखा की परवाह करता सी। ये इहदियां 2 चीज़ां सी। हुण जदों असीं इहनूं ग्रीक भाषा दे यूनानी भाषा के अंदर पढ़ांगे तो परमेश्वर के डर का मतलब है कि वो किसी खुदा को नहीं सी डरदा, किसी खुदा नूं नहीं मनदा, है ना। दूसरा गल है जिथे लिखा ना वो मनुखा की परवाह नहीं सी करदा, उत्थे जदों तुसीं ग्रीक लैंग्वेज च पढ़ोगे तो उसका मतलब है किसी की इज्जत नहीं सी करदा। जिहदा कई बार हुंदा ना कि छोटे बच्चे कुछ कर दिंदे ने, है ना, मान लो असीं कुछ कर दईए तो साडी ना चले, फिर असीं अपने दादे नूं जां परदादे नूं लैके जाने, जां अपने घर तो किसी वड्डे नूं लैके जाने आ, तो अगला बंदा कहता यार तेरे मूँह नूं नहीं कीता पर तेरे दादे के मूँह नूं कीता, क्योंकि असीं उहदी बड़ी इज्जत करदे हां। मतलब इज्जत उहदी इज्जत दे करके असीं ये काम कर दिता। और लिखा मनुख किसी की इज्जत भी नहीं सी करदा। ये भी नहीं है कि फलाना बंदा बड़ा सीनियर है या उम्र च बड़ा वड्डा है तां करके इहदा काम कर दो, उन्होंने किसी मनुख की परवाह नहीं सी। पर जो विधवा बार बार जाती सी, बार बार जाती सी, रोज़ ਉਹਦੇ किन्ना कुछ ਉਹਨੂੰ झलना पैंदा होएगा उस विधवा ਨੂੰ। हो सकता ਉਹਨੂੰ किराया खर्चना पैंदा ਉਹਦੇ घर तक, हर रोज़ किराया खर्च के जाती होएगी। हो सकता है वो जज सी, ਉਹਨੂੰ मिलन तो पहला दरबान खड़े होणगे। मैनूं किसी काम दे लई किसी जज के सामने जाना पाया पिछले दिनों च, और आप पहली बारी गए, सानू कोई पता नहीं कोर्ट का की नियम है की नहीं। मैं वो कोट जिहा पाया सी और मैं जज सामने बैठी और मैं कोर्ट दे विच हत्थ पा के बैठा। जिहदा पुलिस वाला सी ना मेरे कोल आया भज के, मैनूं कहंदा जनाब हत्थ कढ़ लो, जज के सामने खड़े हो। मैं फटाफट मैं हुण सानू पता नहीं है ना किद्दां ट्रीट करना है उस बंदे नूं। उत्थे उद्दा है उन्हां दा कि जो वो आउंदे ने चाहे जिहड़ा मर्जी ऑफिसर होए, वो अपनी जगह ते खड़ा हुंदा उन्हां दे आदर दे लई। वो जज सी उस समय का। तो हो सकता है जो विधवा वो बूहे तो प्रवेश करती है तो उन्होंने किन्नियां गल्लां सुन के इत्थे तक पहुँचना पैंदा है। पर वो रोज़ जाती सी, रोज़ जाती सी, और वो रोज़ जान का इफैक्ट ये सी कि असर ये होया कि वो बंदा जरा किसी तो नहीं सी डरदा, ना परमेश्वर तो ना मनुखा की इज्जत करता सी। उन्हें भी एक फैसला लिया भी नहीं यार ये रोज़ रोज़ आती है, अज मैं इसदा काम कर देंगे, इन्हूं इहदे बैरी तो बदला लै देंगा। हालेलुया। हुण परमेश्वर दे आत्मा ने इत्थे क्या, फिर ये सोचो कि जरा एक कुधर्मी बंदा जरा बेइंसाफी है, जिहदे अंदर इंसाफ ही नहीं है, वो बंदा एक विधवा का न्याय कर सकता है, तो वो परमेश्वर जरा प्रेम करने वाला और तरस दे नाल भरिया होया है, वो अपने चुने होयां दा हाँ जरा चुनिया होया शब्द है। इस तो पहला किसी चुने हुए शब्द के उत्ते मनन करिए। मैं एक होर चीज़ के उत्ते मनन करना चाहता हाँ। इत्थे एक शब्द इस्तेमाल होया कि वो विधवा उहदे कोल आके कहंदी सी कि अब मेरे वैरी तो मेरा बदला लै दे। जिहड़ा वैरी शब्द है वो ग्रीक भाषा का 473 नंबर शब्द है, जिहदा है एंटीडिकोस। इनू एंटीडिकोस कहते हैं यूनानी भाषा के अंदर। इसका मतलब है शैतान। विरोधी का नाम की है शैतान। हालेलुया। परमेश्वर इत्थे दूसरी गल ये सिखा, पहली गल तो कि सदा प्रार्थना करते रहो, हिम्मत ना हारो।
विश्वास च कमज़ोर ना होवो। नहीं जवाब आ रहा फिर भी प्रार्थना करो, पर तुहानूं लग रहा कि कुछ भी हल नहीं हो रहा फिर भी प्रार्थना करो। यदि इको बड़ी है, फिर भी प्रार्थना च बने रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो। दूसरी गल, कुछ बरकतां हुण उत्थे ओदा विशा की सी, मेरे वैरी तो मेरा बदला लैके दे। हुण वैरी शब्द जिहड़ा है वो एंटीडिकोस शब्द जिहड़ा यूनानी भाषा का है, ओदा मतलब है शैतान। ਇਹਦਾ मतलब कुछ साडियां बरकतां शैतान ने रोकियां ने। तो जो तुसी मेहनत करोगे, लगातार प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर उस शैतान के हथों उस बरकत को खो के तुहानूं देगा। हालेलुया। जिवें साडे पास्टर जी, पास्टर डैनियल जी और पास्टर तरसेम जी भी कहते हुंदे सी कि कुछ बरकतां खुदा को खो के लैनियां पैंदियां ने। मतलब ये नहीं भी वो खुदा को खोनियां ने, वो शैतान के वस च नहीं, शैतान उन्हें रोक रखता। बाइबल च एक गल तुसीं पढ़ोगे, बाइबल च लिखा जो डैनियल नबी की किताब में पढ़ोगे ना तुसी, तो बाइबल च लिखा कि डैनियल नबी जो बजुर्ग हो गया तो उन्हें जरमिया की किताब कढ़ी। तो जो उन्हें जरमिया की किताब पढ़ी तो एक उन्हें प्रोफेसी पढ़ी कि 70 साल बाद मैं अपने लोगों को अपने देश च वापस लै जावांगा। हुण एक पाप होया, जो डैनियल जवान सी, जवान है ना, मुंडा कुंडा सी, 16-17 सालों का, इत्थे कोई उम्र लगा सकते हैं असीं। जो वह जवान सी उदों यरूशलेम के अंदर बे इंतहा पाप सी, पाप ही पाप सी चारे पासे। तो परमेश्वर ने एक राजे को खड़ा किया कि एक राजा आएगा, वो यरूशलेम को भी नाश कर देगा, ईवन भवन को भी ढा देगा। हले कि बहुत हमले हुए ने यरूशलेम से, पर भवन नहीं ढाया जाता। पर खुदा ने कहा कि जाजका ने, जो उस समय के पास्टर लोग सी, उन्होंने उहदे अंदर भी हैकल के अंदर भी पाप किया है। ये हैकल भी हुण भरिष्ट हो गई, उन्होंने जगह पवित्र जगह नहीं रही, हैकल भी ढा दी जाएगी। बाइबल ये बयान करती है, एक राजा उठिया, उन्हें यरूशलेम से वार किया, उन्होंने ढा दिता, उत्थे जी हैकल सी उन्होंने ढा दिता और लोगों को बंदी बना के लै गया। डैनियल उन्होंने बंदी बनाए, कैदी बनाए हुए लोगों चो एक सी। हुण डैनियल कई लंबा समा उत्थे रह चुकिया सी, जवान आया सी कैदी के रूप च, ते एक तीसरे नंबर वाला बंदा बन के वो बजुर्ग हो चुका सी। पर वो रूटीन से एक प्रार्थना करनी और बाइबल पढ़नी। और जो उन्हें बाइबल पढ़ी अपने बजुर्गी के दिनों च, उन्हें पढ़िया उत्थे कि इत्थे लिखिया है कि 70 साल के बाद मैं अपने लोगों को वापस लै जावांगा। तो मेरी उम्र के हिसाब नाल 70 साल पूरे हो गए ने। हुण तो चाहिए खुदा नूं कि सानू कित्थे लै जाए, यरूशलेम च वापस लै जाए, कैद तो सानू आज़ाद करे। तो वो प्रार्थना ते बैठ गया इस विषय के उत्ते कि मैं प्रार्थना करांगा कि परमेश्वर। असल च उन्हें पश्चाताप की प्रार्थना की। जो तुसीं पढ़ोगे, उन्हें पूरी कौम के लिए कल्ले ने पश्चाताप किया कि परमेश्वर सानू माफ कर। जो पश्चाताप कर रहा सी, तो बाइबल ये दसदी है कि पहले दिन ही उसकी प्रार्थना सुनी गई, पहले दिन ही। और पहले दिन ही स्वर्गदूत उत्तर आया जिसका नाम है जिब्राइल। हालेलुया। जरा बाइबल च परमेश्वर का एक मैसेंजर है, लोगों तक सनाह पहुँचाने वाला। ज़्यादातर जो तुम बाइबल च देखोगे, जिथे किथे भी कोई सनाह पहुँचाया गया, चाहे मरियम तक, चाहे जकरिया तक, चाहे डैनियल तक, हर सनाह जरा है वो जिब्राइल के जरिए पहुँचाया गया। हालेलुया, हालेलुया। जो पहले दिन ही निकलिया तो कुछ शैतानी दूत सी जिन्होंने उसकी जंग हुई। हुण वो मैसेंजर सी, ये नहीं कि उहदे च लड़न की पावर नहीं सी, पर वो मैसेंजर सी, वो लड़ाई वाले मामले वाला नहीं सी। तो बाइबल ये बयान करती है कि 21 दिन वो उत्थे लड़ते रहे उत्ते। फिर मीकाएल आया जिहड़ा कि लड़न वालियां दा, परमेश्वर के जिहड़े दूत ने, जिहड़े लड़न वाले ने, जिहड़े राखी करन वाले ने, वो आया, उन्हें उस शैतान नूं मारिया। जिब्राइल थल्ले आया और जिब्राइल ने उन्हें सुना दिता। हुण 21 दिन तक वो प्रार्थना करता रहा, फास्टिंग च रहा, मुद्रे मुँह रहा। उन्हें ये नहीं सोचा लै यार अज 2 दिन हो गए मैनू प्रार्थना करते इस विषय से, कोई जवाब नहीं आया। वो धार के नहीं सी बैठा कि मैं 21 दिन रोजे करने ने, वो सिर्फ प्रेयर ते बैठा सी। लिखा ने वर्त रखे, वर्त रखिया ते प्रार्थना ते बैठ गया। वो वर्त एक दिन का वर्त 21 दिनों के वर्ता ते चला गया। ओदी कोई मैंटैलिटी नहीं सी कि मैं सोच बना के बैठा कि मैं अज जिद्दां आपां धारदे हैं ना, मैं 3 दिन के रोजे करांगा, मैं 4 दिन के रोजे करांगा, मैं 7 दिन के। वो ऐसा कोई सोच के नहीं सी बैठा कि मैं 21 दिन के रोजे करांगा। वो सिर्फ प्रार्थना ते बैठा एक विषय ते। जिन्ना चिर उहदा जवाब नहीं आया वो बंदा उठिया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वैरी रोकदा है बरकत नूं।
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਖੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ, ਰਜਾਈ 'ਚ ਫੋਨ ਚਲਾ ਕੇ नहीं खो सकते, लम्मे पै के नहीं खो सकते, सो के नहीं खो सकते। जागना पेगा, प्रार्थना करनी पेगी, फास्टिंग करनी पेगी। हुण इन्हां दिनां च एक फास्टिंग प्रेयर है ना, ड्राई फास्टिंग। अगले संडे, अगले ऐतवार, जिहड़ा अगला ऐतवार है 29 तरीक का, एक सुक्का रोजा प्रार्थना होएगी चर्च के अंदर। अगले संडे 12 बजे चर्च स्टार्ट होएगा, 3 बजे तक सिर्फ वर्शिप और प्रेयर होएगी, सिर्फ वर्शिप और प्रेयर। अगर खुदा दे आत्मा ने अगवाई की तो वचन होएगा, अगर नहीं तो अज ही मैं उन्होंने कंप्लीट कर रहा हाँ वचन नूं, तां जो सानूं पता है असीं की करना है। उस दिन असीं सभे ही, एक जन नहीं, कला मैं ही नहीं, अगुवे नहीं, वर्शिप टीम नहीं, पूरी कलीसिया एक बूंद पानी भी नहीं पिएगी, एक बूंद पानी नहीं पिएगी। चर्च तो चर्च च ही खाना होएगा सबना का, और 3 बजे वो फास्ट खोलिया जाएगा। अगर तुसी ब्रश भी करोगे, मैं रखे नहीं वो फास्टिंग, अगर तुसी ब्रश भी करोगे तो वो एक भी बूंद पानी दी अंदर नहीं जानी चाहिए, वो भी बाहर निकलनी चाहिए। तुसी फुली ड्राई फास्टिंग करोगे, एक बूंद पानी अंदर नहीं जाएगा, चाह अंदर नहीं जाएगी, कोक अंदर नहीं जाएगी, जूस अंदर नहीं जाएगा, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। तुसी उसे फास्टिंग दे नाल चर्च च आओगे और असीं प्रार्थना करांगे। असीं उहदा पहला रिजल्ट बुरावाल च देखिया, बयान नहीं कर सकदा मैं। हुण आपां होर विषय, मैं कहना इत्थे प्रोजैक्ट भरे ने, ऐकता दे साल जिहड़ा ना प्रोजैक्टां दा भरिया है मेरे कोल। जदों ये स्टार्ट होणगे ना, पवित्र आत्मा ने मैनूं एक काम सौंपिया है, मैं उहनूं एक्सप्लेन कर लगा हाँ, सिर्फ हुण वचन तो थोड़ा जिहा एक साइड ते जाके, तां जो तुहानूं समझ आए सी ये क्यों करना है। कल्ले मैनू नहीं, कली वर्शिप टीम नूं नहीं, कल्ले आगूआं नूं नहीं, परमेश्वर ने मैनू एक वर्क सौंपिया है। देखो इन्हां दिनां ज़्यादातर जिहड़ी प्रेयर मीटिंग च मैं होवां, मैं कोशिश करदा कि मैं ही लीड करा। ये नहीं कि लीड करने वाले अच्छे नहीं ने, पर मैनू एक वर्क सौंपिया गया, मैं उस काम नूं करन दे लई पवित्र आत्मा नाल भरपूर होना है। खुदा ने मैनू कहा लोग ये नहीं कि लोगों के कोल पवित्र आत्मा नहीं है, वर्शिप टीम के कोल पवित्र आत्मा है, आगुआं दे कोल पवित्र आत्मा है, पास्टर दे कोल पवित्र आत्मा है, कलीसिया के लोगों के कोल पवित्र आत्मा है, पूरी कलीसिया को पवित्र आत्मा है। और मेरे पहले शब्द जिहड़े मैं पहला प्रचार च बोलता रहा हाँ कि मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं एक ऐसी कलीसिया बनाना चाहता हाँ, या एक ऐसी कलीसिया क्रिएट करना चाहता हाँ परमेश्वर के अनुग्रह नाल, जिथे सभे अन्य भाषा बोलन और सभे ही पास्टर हों। अगर तुहानूं वो प्रचार याद होए, मैनूं तो याद नहीं क्योंकि मैं कीते नहीं, अगर तुहानूं याद होए तो मेरे शब्द सी कि मैं चाहता कि मैं ऐसी चीज़ तैयार करा जितों हर एक बंदा पास्टर हो, हर एक बंदा पवित्र आत्मा के वसीले नाल इस्तेमाल होए। जरूरी नहीं कि पास्टर की वेट की जाए कि पास्टर आए तो मीटिंग स्टार्ट होए तो प्रार्थना करे तो बीमार हील होए। हर बंदा हीलिंग कर सके, हर बंदा अन्य भाषा बोल सके, हर बंदे के अंदर दान वरदान हो। तो वो हुण जरा मेरी चाहत सी ना, वो मेरे ते ही है। हुण तेरी ड्यूटी है, तू करवाना है। मैं इन्हां दिनां उस मेहनत नूं आपां पूरी कलीसिया मिल के करांगे। पहला टाइम मेरा आया, मैं अपना कर चुकिया, हुण टाइम आगूआं दा है तो मेरा इकट्ठा है ना। उस तो बाद अगले संडे जिहड़ा संडे आएगा, जिहड़ा ऐतवार आने वाला अगला ऐतवार, उस ते पूरी कलीसिया है। और उस तो बाद फिर हौली हौली होर जिहड़ा डिपार्टमेंट है वो प्रोजैक्ट खोलते जाएंगे, आपां काम करते जावांगे। हालेलुया। क्योंकि असीं वो बैरी जिहड़ा साडा बैरी है ਉਹਦੇ हथों उस बरकत नूं खोना है। हालेलुया। फिर एक शब्द आया है कि परमेश्वर अपने चुने होयां नूं, देखो अगर एक ऐसा मनुख जिहड़ा ना ते परमेश्वर का डर रखदा ना मनुखा का डर रखदा, वो इंसाफ कर सकता है। तो फिर यीशु मसीह ने कहा देखो जे वो इंसाफ कर सकता है तो परमेश्वर जिहड़ा प्रेम ते तरस दे नाल भरिया होया है, वो अपने चुने होयां दा न्याय क्यों ना करेगा। हम पहला पॉइंट, परमेश्वर किन्ना दा न्याय करता है, जेरे वो ओदे बोलो जेरे ओदे जेरा चुनिया होया शब्द है ग्रीक भाषा का, वो है इक्लेटोस। इक्लेटोस ओदा ग्रीक भाषा का 1586 नंबर शब्द है। ਇਹਦਾ मतलब है जेरा परमेश्वर का पसंदीदा बंदा होए।
चुने हुए का मतलब है जिन्हों परमेश्वर पसंद करता है। हुण अपने कम्मां ते ध्यान दो कि मेरे कम्मां दे अनुसार परमेश्वर मैनूं पसंद करता है। असी असी है ना बड़ा शिंगारते हैं अपने आप नूं कि मैं सोहना लगा, असी अपने आप नूं बड़ा करते हैं है ना कि सोहना लगा, सुंदर दिखां, ये होवां वो होवां, फलाना बंदा मैनूं पसंद करे। कभी ये कोशिश की है कि मैं अपने अंदर नूं भी सवारां तां जो परमेश्वर मैनूं पसंद करे। असी दूसरे नूं खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, दुनिया नूं खुश करने के लिए आ कर दो, ये कर दो, आ कर दो, वो कर लो। रिश्तेदारां नूं खुश करने के लिए मीटिंग अगे पिछे कर देने, कोई गल नहीं, फास्टिंग तोड़ देने, आ कर देने, प्रेयर का टाइम अगे पिछे कर देने। कभी ये सोचे हैं कि परमेश्वर मेरे तो खुश है या नहीं? किसी रिश्तेदार नूं खुश करने के लिए झूठी तारीफ करी जाने हैं बिना किसी गल तो ही। एवं जिथे मर्जी रोटी खान बैठ जाते हैं और जो खाने पता है नमक ज़्यादा है, स्वाद नहीं है, जो ओहो भैन जी दी रोटी बड़ी वधिया बने, एवं फोकी तारीफ करी जाने तां जो अगला बंदा साडे तो की होए, खुश हो। कभी अपनी जिंदगी ते गौर किया कि परमेश्वर मेरे तो खुश है, कि मैं परमेश्वर नूं पसंद हाँ? परमेश्वर उन्हां दा छुटकारा करता है जिन्हां तो परमेश्वर खुश होए। ते परमेश्वर इक्को चीज़ तो खुश हुंदा है, जानते हो कहते तो? किसी ने तो बलिदान बोलिया, हम पता नहीं किन्ने बोलिया पर किसी ने बलिदान बोलिया। बाइबल च लिखा है जो शाउल नूं कहा गया कि जाके सब नाश कर दें तो वो कुछ चीज़ां बचा के ले आया। जो सैमुअल नबी पहुंचा तो सैमुअल ने उन्होंने कहा कि मैं भेडां की आवाज़ सुन रहा हाँ, पशुओं की आवाज़ सुन रहा, कित्थों आ रही है? कहना मैं थोड़े जे बचा के लियांदे तां जो तेरे परमेश्वर दे अगे की कर सका, भेड बलि चढ़ा सका। उत्थे सैमुअल का एक जवाब है, परमेश्वर भेटां ते बलिदानां तो खुश नहीं हुंदा बल्कि जिन्ना वो अपनी गल मन्ने जाण ते खुश हुंदा है। परमेश्वर खुश हुंदा सिर्फ आग्याकारिता तो। अगर तो तुसी परमेश्वर की आग्याकारिता च हो तो परमेश्वर तुहाडे तो प्रसन्न होएगा। तो जे प्रसन्न होएगा फिर भी अगे दूसरा पॉइंट है, वो जेडे दिन रात उहदी की करते हैं, दुहाई देंदे ने। हालेलुया। हिंदी च भी वो शब्द नहीं आया पर मेरी जी ग्रीक की ट्रांसलेशन है, जी जिस बाइबल में मैं पढ़ता हाँ यूनानी भाषा के अंदर, ਉਹਦੇ अंदर वो शब्द हैं, ना हिंदी च मिलिया मैनू ना पंजाबी च मिलिया मैनू साडियां किताबां दे अंदर। उत्थे लिखा जेडे लोग दिन रात प्रार्थना करते ते सहंदे ने, सबर रखते ने। मतलब कई बार तुसी प्रार्थना भी करते हो, फास्टिंग भी करते हो और तुहानू बहुत कुछ सहना पैंदा है, सबर करना पैंदा है बरकत दे लई। ते जेडे लोग सह के सबर करते हैं परमेश्वर उन्होंने छुटकारा जरूर देगा। जे एक बेइंसाफ बंदा जिहदे अंदर कोई इंसाफ नहीं, परमेश्वर का डर नहीं, जे वो एक विधवा का न्याय कर सकता है तो कि परमेश्वर अपने पसंदीदा बंदे का जां अपने उस बंदे का जिहड़ा दिन रात उहदे अगे प्रार्थना कर रहा है, जिहड़ा लगातार उहदे अगे प्रार्थना कर रहा है, जिन्हें ये नहीं 3 दिन की फास्टिंग कही तो 3 दिन ही रोजे रखने ने। जिदा बहुत सारे लोग ने ना जिन्ना दिन फसे होवो है ना, फस जाओ तो उन्ना दिन। हम कल किसी परिवार के उत्ते विपता बनी तो गोडे टेकन च मिनट नहीं लगा तो अज फिर चर्च च नहीं है, वो मिनट नहीं लगा भी गोडे टेके गए, प्रभु सानू माफ कर, प्रभु सानू माफ कर, प्रभु सानू माफ कर। हुण ये बंदा लगातार वाला नहीं है तो फिर वो मुकम्मल जरा छुटकारा है, पूरा छुटकारा उन्होंने किवें ग्रहण करेगा, किवें उस मसले का हल कराएगा। जिवें कल नाइट प्रेयर के अंदर बहुत सारे लोग बहुत कुछ मिस कर गए और कल पवित्र आत्मा कह रहे थे मैं तुहाडी जिंदगी के गंभीर मसलियां ते काम कर रहा, हुण अपने गंभीर मसले जिहड़े ने उन्हां दे उत्ते किदों है ना, मैनूं भी अज कुछ विषय मिले, आ विषय की प्रार्थना करो, आ विषय की, मैं कहा जी मैं अपने विषयों के उत्ते प्रार्थना कर रहा। हुण मेरे को एक विषय ने, कुछ विषय ऐसे ने जिन्होंने असीं डिले भी कर दें, कोई गल नहीं यार बाद कर लांगे, किसी दिन इस विषय के उत्ते प्रार्थना करांगे, फास्टिंग करांगे। पहला जिहड़े मेन विषय ने असीं उन्हां दे उत्ते प्रार्थना कर रहे हैं।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। दूसरी गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ पता होना चाहिए है कि परमेश्वर काम करेगा, पर मेरी बरकत शैतान ने रोकी है, मेरे को खोनी है। मैं अपने वैरी को बदला लेना है, तो परमेश्वर ही मैंने वो बदला लैके दे सकता है, तो मैं कंटिन्यू प्रार्थना करनी है परमेश्वर दे की। दूसरी गल फिर तुसी परमेश्वर दे पसंदीदा बंदे चाहिए हो। पसंदीदा बंदे का मतलब है कि जिहदे तो परमेश्वर प्रसन्न होए, जिहदे जीवन तो। हालेलुया। किन्नियां ने बाइबल च पढ़िया है कि यीशु मसीह नूं कहा गया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तो इस तो मैं प्रसन्न हाँ। इन्नियां ने पढ़िया बस। मैं कहा किन्नियां ने बाइबल च पढ़िया है कि यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया, तो जो पानी तो ऊपर आए, तो स्वर्ग तो एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिहदे तो मैं प्रसन्न हाँ। पढ़िया है बाइबल के अंदर। किसी होर दे बारे क्यों नहीं बोलिया गया? उनको परमेश्वर सी, इसलिए ਉਹਦੇ ਲਈ बोलिया गया। ਉਹਦਾ एक पवित्रताई वाला जीवन सी, जो उन्हें तोबा बपतिस्मा तो पहला ही बतीत किया सी। वो किसी पाप च नहीं गिरिया, घर के काम भी किए, कारोबार भी किया। बहुते कहते साडा कारोबार है ना थोड़ा बहुता। यीशु मसीह भी तरखान का काम करते सी, यूसुफ के नाल मिलकर 30 साल उन्हें अपने परिवार च रह गए। कितने नहीं लिखा यीशु ने झूठ बोलिया है। कारोबार किया यीशु मसीह ने भी 30 साल अपने पिता दे नाल बह के तरखान का काम किया। ओदी पवित्रता ही सी, ओदी आज्ञाकारिता सी। बाइबल च इत्थों तक लिखा है, इब्रानिया की किताब के अंदर, इब्रानिया की पत्री के अंदर, उन्हें पुत्र होने के बावजूद भी, परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी दुख उठा उठा के आज्ञाकारिता सीखी। स्ट्रगल किया यीशु मसीह ने भी, ते आज्ञाकारिता सीखी। हालेलुया, हालेलुया। तुहानू आज्ञाकारिता करनी पेगी परमेश्वर की, ताजो परमेश्वर तुहाडे तो की होए, प्रसन्न होए। हुण तुसीं सेम हो जांदे हो, जिथे जांदे उदां दे। इधर नूं गए, इधर नूं। ते इधर वाले पासे गए तो इधर नूं तुर पे। कोई ऐसा रिश्तेदार मिले जिहड़ा फिल्मी गाने सुनता है, तो फिल्मां वेखनियां पसंद करता है, तो उस दिन टीवी ते फिल्मां आ जाएगियां। जिस दिन कोई दवाबंदगी वाला आएगा, उस दिन टीवी बंद करके बाइबल दी गल्लां शुरू हो जाएगियां। असीं एक है ही नहीं। असीं तो वेखदे आ भी किधर नूं किदां दा बंदा है, उदां दे असीं बदल जाने। यीशु मसीह नूं बहुत सारे लोग मिले, जक्की उन्हां चों एक सी। यीशु ने जाके कहा, होर जक्की किदां फिर पैसों का की हिसाब किताब है, चल आ फिर हेरा फेरी कर लिए थोड़ी जी होर। बदलिया उन्होंने वेख के, अपना करैक्टर मेनटेन रखा, अपनी पवित्रता मेनटेन रखी। अगले नूं बदलना पिया, यीशु मसीह नहीं बदलिया। जक्की नूं बदलना पिया अपना आप। असीं जिथे जाने उत्थे ही उदां दे हो जाने। फिर कहने पूर्ण छुटकारा नहीं आया जी, सानू थोड़ा बहुता तो करना ही पैंदा ना। करो करो, वेरी गुड, करी जाओ। फिर पूरे छुटकारे की आस भी ना रखो परमेश्वर के अगे। कदे फिर अपने वड्डे वड्डे मसले प्रभु आ कर दे, प्रभु आ वाला काम कर दे, कदे खुदा के अगे ना रखो, क्योंकि वो कदे नहीं होने वाले। सी निराश होकर उठ जाओगे, पर खुदा हल नहीं करेगा, क्योंकि वो एक समर्पण मंगता है। फिर हालेलुया। बीते दिनों ते 2 भैनों ने कहा कि असी प्रेयर करनी है तुहाडे नाल मिल के। तो मैं कहा चलो असीं 3 ते जाने आ कि चर्च च बैठना, आ जाओ मेरे प्रेयर रूम च बैठते हैं। असीं प्रेयर रूम च बैठ के प्रार्थना शुरू हुई। प्रार्थना शुरू करने तो पहले असीं कुछ गल्लां कर रहे सी। तो मैंने दस्सिया, मैं कहा मेरे नाल ते कई बार ऐसा भी वापरदा है कि जो मैं जिद्दां हुण आ जो तैयार किया है ना, तैयार किया है, आ जो कुछ भी प्रभु ने लिखाया है तो मैं लिखिया है, तो जो कुछ भी सिखाया है तो मैं सीखिया है। ये 1 हफ्ते पहला का है, पर यदि पूरी क्लैरिफिकेशन कल रात की प्रार्थना से। तो मैं उन्होंने कहा, मैं कहा मेरे नाल जी मेरी रात की प्रार्थना से जो मैंने वचन सिखाता है ना परमेश्वर दा आत्मा, उदों तो मैंने इउं लगता है कि मेरे लागे एक बंदा होना चाहिए जिहड़ा लिखी जाए, बस कि खुदा का रूह मैनू बोली जाए, मैं बोली जावां तो वो लिखी जाए। तो उस भैन ने ना उस चीज़ को अपने मन च लिया भी नहीं ये चीज़ है। मैं कहा मैनू खुदा का रूह इवें गल करता है मेरे नाल। जो असी प्रार्थना शुरू हुई, मैंने नहीं पता कि वो की मंग रही सी क्या की नहीं मंग रही। मैं सिर्फ जिदा असी प्रेयर करते जिदा मैंने पवित्र आत्मा गाइड कर रहा सी, मैं उहदे ते ले हैंड किया और पवित्र आत्मा ने मैंने कहा कि
ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦਾ ਤਾਜ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੋਲਡਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀਰੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਰਦਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਗੈਸਟ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੈਸਟ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਗਈ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਕੋ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਮਸਾ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਹ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਰਦਾਨ ਜਾਂ ਜੋ ਮਸਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਰਪਣ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਰਪਣ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, तो तू तैयार है। परमेश्वर अगर तेन वो वरदान दे सकता है तो मसा भी दे सकता है कि तू उससे मसा ना इस्तेमाल हो। और अगर तेरा वो समर्पण करने का तरीका नहीं है, या तेरा ध्यान नहीं है, तेरी मेहनत नहीं है, तो फिर तू परमेश्वर के अगे पसंदीदा नहीं है। तो जे तू पसंदीदा नहीं है तो जिदा कले यीशु मसीह के बारे क्यों बोलिया गया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिस तो मैं प्रसन्न हाँ, और किसी के बारे क्यों नहीं बोलिया गया? कला अब्राहम के बारे क्यों बोलिया परमेश्वर ने ये मेरा मित्र है, और किसी के लिए क्यों नहीं बोलिया गया कि ये मेरा मित्र है? कले दाऊद के बारे ये क्यों क्या कि ये मेरे दिल के नज़दीक का बंदा है? क्यों क्या? उन्होंने बंदियां के अंदर कोई ना कोई खासियत सी ना, जिथे उन्होंने दुनियादारी नूं ना करके परमेश्वर नूं हाँ की कि नहीं असी परमेश्वर दे, असी परमेश्वर के पिछे चलना है, सानू दुनिया की परवाह नहीं, सानू पैसे की परवाह नहीं, सानू तुहाडा साथ नहीं चाहिए। अगर तुसी साडी इस गल तो रुसदे हो तो 100 बारी रुस जाओ, पर असी नहीं करना। हालेलुया हालेलुया। हुण बीते दिनां असीं किसी अपने रिश्तेदार को गए, अवल तो मैं जाता ही नहीं, एक कॉल है, पहला तो सलोमी कह रही सी कि जाना है, तो उस दिन उन्होंने कॉल आई कि कोई बीमार है, तो असी इक्को झटके च गए, जिदा मान लो घंटे अंदर ही तैयार होकर निकल गए। हुण सलोमी उन्होंने दिनों च फास्टिंग च सी, हुण असीं इन्ने 6 महीने बाद गए, शायद मेरे ख्याल कमल की मैरिज तो बाद ही गए, शायद 6-7 महीने बाद गए असीं। हुण उत्थे जाके अगर ये कहो कि असीं आए जरूर ना तुहाडे कोल, पर कुछ खाना है नहीं, बंदा नाराज होएगा या नहीं होएगा? होएगा ना। तो हम रिश्तेदार मनाइए कि परमेश्वर मनाइए? अपने विषय वाले वेखिए, रिश्तेदार वाले वेखिए। रिश्तेदार तो वही रहेगा और उत्थे ही रहेगा, मिल जाएगा, माफ़ी मंग सकते हैं, समझा सकते हैं, इधर की जवाब देवांगे, इत्थे कई मजबूरी दसांगे, इधर तो कोई मजबूरी नहीं चलती। तो परमेश्वर तुहाडी आग्याकारिता चाहुंदा है, एक अलग ताई जिस तो परमेश्वर तुहाडे तो प्रसन्न होए। दूसरे नंबर ते तुहाडे अंदर सबर चाहिए है। सबर ये हिंदी च भी नहीं लिखा, पंजाबी च भी नहीं लिखा, पर ग्रीक च लिखा है।
कि फिर ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਬਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਸੀ, ਦਸੰਬਰ ਦੀ 4 ਤਰੀਕ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਮੋਸਟਲੀ 4 ਕੇਸ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, 4 ਕੇਸ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ 4 'ਚ ਜਾਂ ਤੇ 2 ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ 4 ਕੇਸ ਪੂਰੇ ਬੋਲਣੇ ਪੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ 2 ਕੇਸ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਚਲੋ 2 ਕੇਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਨੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਜੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਸ ਵਕਤ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੈਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਪਾਸਟਰ ਨਾ ਕਹਿ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਸੈਮ ਹੀ ਕਹਿ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਸਟ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ? ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਸਮਝੋ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਮੀਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਠੀ ਤੋਂ ਸੱਪ ਬਣੇ ਤੇ ਸੱਪ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਠੀ ਬਣੇ, ਉਹਦੀ ਲਾਠੀ ਤੋਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬੋਲੋ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਸਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰਥ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਤੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਭਰਾ ਹरून, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹरून ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰੌਨ ਨਾ ਬੋਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਘੁਬਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਹੀ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ 3000 ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3000 ਨੇ ਤੇ ਤੋਬਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਸੀ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਕਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਡਰਾਈ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਰਹਿ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਰਾਤ ਸੋਚ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ 3 ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਧਾਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਬਾਈਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਸ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ 40 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੀਅਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਧੀ ਭਲਾ? ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਓ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰੋਜ਼ਾ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਿਰ ਚੱਕਰਾਉਣ ਡਿਆ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਣੇ, ਮੇਰਾ BP ਲੋ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉੱਦਾਂ ਭਾਏ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਕਵਿਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਦੌੜੋਗੇ ਤੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਧ 'ਚ ਮੁਰਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋਇਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਬਣੋ। ਜੋਇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੌੜਦਾ ਗਿਆ ਅੱਧ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਹ ਅੱਧ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਮੈਡਮ ਲਾਗੇ, ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਧ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬਣੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਮਤਲਬ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਬਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਬਾਅ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਰਾਤ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਹੀ ਚਲਾ ਕੇ ਸੋਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਅੱਜ ਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਮਤਲਬ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਾ ਬਣੋ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਵੀ। उन्होंने क्या है कि मैं तुहानू स्वर्ग के राज च खरांगा जिथे सोने दी सड़कां होणगियां। हुण जिद करके बह जाओ इत्थे कि मैनू अज ही खड़ उत्थे, मैं अज ही उस सोने की सड़क ते तुरना है। तुहानू दर्शन च खड़ सकदा है, दिखा सकदा है। उहदे लई भी बड़ी मेहनत चाहिए, बड़ा उच्चा लैवल चाहिए। फिर किते हो सकदा है, मैं नहीं कहता हो नहीं सकता, फिर किते हो सकदा कि खुदा दा रूप मन जाए, तुहानू दर्शन च वो चीज़ां दिखा दे जिवें उन्हें यूहन्ना नूं दिखाइयां। हालेलुया। हो सकता है, पर तुसीं कहो कि प्रैक्टिकली अज ही मैनू खड़ उत्थे, तो प्रभु ने एक समय ठहराया है, उस समय तो पहले नहीं खड़ेगा। सबर करो। अगर परमेश्वर ने बोलिया है तो करन दा उहदे अंदर समर्थ है कि वो कर सके। 24 साल वेट की है अब्राहम ने भी, वादा मिलन के बावजूद भी, दर्शन देखने के बावजूद भी। यूसुफ ने 13 साल वेट की है। हालेलुया, हालेलुया। सबर करना सीखो। विषा रख दिता, उहदे ते लगातार प्रार्थना करते रहो, तो सबर भी रखो कि अगर मेरे खुदा ने मैनू बोलिया है, और जिहड़ियां चीज़ां मेरे लिए बोलियां गई ने मैनू पता है कि बोलिया गया है, और मैं उहदे च सबर च हाँ, क्योंकि मैनू पता है मेरे पिता ने जो वादा किया है उन्होंने पूरा करने की ताकत भी उहदे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। पर अज ही अगर
रोना धोना शुरू कर दिए भी अज ही कर तो फिर जल्दबाजी वाला काम होएगा। मेरी गारंटी है इत्थे कोई विश्वासी है, कोई आगू है, कोई वर्शिप टीम वाला, कोई भी विश्वासी है, मैं लिख के दे सकता, लिख के जिन्हें भी परमेश्वर के कोलों जबरदस्ती कोई काम करवाया है कभी उस काम का पूर्ण आनंद नहीं लिया। कईयां ने विआह करवाए ने रोजे रखा के, ਇਹਦਾ रोजा रखा अज तक उस बंदे की मैरिज लाइफ चैक करो जिहदा तुसीं रोजे रख के जिहदे जिहदे विआह की दुआवां कीतियां सी कि प्रभु दोवें परिवार मन जान, बस हो जाए बस। देखो उन्हां दी मैरिज लाइफ, तुहानूं किते खुदा दा हथ नज़र आउंदा है? लगदा है भी इन्हां दे उत्ते खुदा दा हथ है। जबरदस्ती काम करवाए खुदा दे कोल। खुदा नहीं सी चाहुंदा बंदा बाहर जाए, चाहुंदा सी इत्थे सेवा करे। कितना पैसा वेस्ट होया, कितना टाइम वेस्ट होया, हुण जाके वो बंदा सैटल होया है, अजे भी पक्का सैटल नहीं होया। तो उदों दे रोजे ते रोजा खुदा दे रू बाहर ही जाना है, बाहर ही जाना है, बाहर ही जाना है। की फायदा होया उहदा? नज़र आ रहा है हथ किते खुदा दा इस बंदे उत्ते? अगर जिन्हों खुदा ने भेजा है ना तो वो बंदा उहदे काम च खुदा दा हथ नज़र आउंदा है भी खुदा इहदे नाल है। वेख सिद्धियां पैंदियां ने, जिन्हों कहंदे ने पंजाबी के अंदर, फिर सिद्धियां पैंदियां जांदियां ने। इहदा मतलब है कि खुदा दा रू इहदे नाल है। असीं जबरदस्त वाले ना बनीए, सबर करिए। परमेश्वर ने आशीषित करन दा देखो, तुसीं सोचदे हो कि असीं फौरन जाके ज़्यादा आशीषित हो सकते हैं। हो सकता है परमेश्वर फौरन नालों ज़्यादा तुहानूं इत्थे आशीषित कर सके। तुसीं सोचदे मैं नौकरी ते लगांगा तो फिर ही ज़्यादा आशीषित होवांगा, मैं पैसा कमावांगा, दिहाड़ी लावांगा तो कम। वो अगर खुदा दा रूह तुहानूं सेवा च इस्तेमाल करके उत्तों भी उत्ते लैके जा सकता है, उहदे तो भी हाई लैवल पे जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर की योजना नूं समझना पैंदा है, सरेंडर करना पैंदा है, अपने आप नूं परमेश्वर का पसंदीदा बनाना पैंदा है, सबर करना पैंदा है, दिन रात प्रार्थना करनी पैंदी है, फिर जाके परमेश्वर का आत्मा एक चमत्कार करता है। हालेलुया। अजे भी होर सारियां बहुत सारियां चीज़ां ने जिहड़ियां चमत्कार के अंदर आउंदियां ने, पर असीं उन्हां दे उत्ते मनन अगले तो अगले संडे करांगे, क्योंकि अगले संडे जरा सिर्फ प्रेयर होएगी और वो प्रेयर मैं लीड करांगा। वर्शिप टीम अपनी वर्शिप करेगी और प्रार्थना नूं लीड मैं करांगा। जी असीं 1 घंटे का वचन सुनते हैं, सरमन सुनते हैं, असीं 1 घंटा लगातार प्रार्थना करांगे, पर उहदे च कोई सुस्ती वाला बंदा नहीं आएगा। जिहड़ा सोएगा उन्होंने पुलपट ते खिलार के प्रेयर की जाएगी। उहदे लिए जाग के आयो, आत्मा च भी शरीर च भी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि असीं प्रेयर करनी है तां जो परमेश्वर के कोल आशीष नूं पा सकीए। अज असीं वचन चो सीखिया है कि असीं लगातार प्रार्थना करनी है अपने विषय दे उत्ते, निराश नहीं होना। कली पास्टर की मेहनत ते ना जाओ, कले ये ना कि पास्टर दियां आंदरा सारी जो अगुआ दी आंदरा सारी जो रोजे रखा के आप भी कुछ करो, आप भी हाथ लाओ, आप भी मेहनत करो। एक चमत्कार च यीशु मसीह ने जिन्नियां दी जिंदगी च भी चमत्कार किया, क्या तेरे विश्वास ने तेनू चंगिया किया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल च एक ही चमत्कार ऐसा है जिहदे च अधरंगी नूं छत खोल के थल्ले लैके आए थे, उहदे च विश्वास जिहड़ा सी लियाउण वालियां दा सी। बाकी हर जगह विश्वास किहदा सी? जिहड़ा प्रार्थना करवाउण आया सी। मेहनत किहदी सी? जिहड़ा प्रार्थना करवाउण आया सी। 12 साल की जिहड़ी बीमार, जिन्होंने 12 साल तो रोग सी, वो औरत की अपनी एक मेहनत सी कि उस हालात च भी उत्थे पहुंची और अपनी बरकत लैके आई। अपनी मेहनत भी करना सीखो। यीशु ते डिपेंडेंट ते हाँ असी पवित्र आत्मा ते, पर पवित्र आत्मा भी साडे वल वेखदा है कि ये बंदा हासिल कर सकता है जां नहीं। हालेलुया। अपनी तैयारी च रहो। हुण इस हफ्ता असी प्रार्थना च रहना है। फास्टिंग चाहे ना करो, तुसी सत आगू और मैं तो करांगे तुसी करो चाहे ना करो, पर अपनी तैयारी च रहना है। और परमेश्वर नूं कहना कि संडे दे लई, ऐतवार दे लई मैनूं आत्मिक ते शरीरिक बल दे। मेरी बेनती है ये, अगर कोई अवॉइड कर सके, मतलब अगर कोई अपने काम नूं अवॉइड कर सके उस दिन, तो तुसी अपने हर काम नूं अवॉइड करके चर्च च पहुंचना है हर हालात च। कोई काम नहीं। 12 बजे चर्च स्टार्ट होएगा, मतलब 12 बजे तुसी करैक्ट इत्थे होने चाहिए। पता नहीं असीं सर्कल बना के प्रेयर करांगे किस
सर्कल छोटे छोटे सर्कल बना के प्रेयर होएगी या एक गोल सर्कल बना के प्रेयर होएगी। ये पवित्र आत्मा उस टाइम ਜਾਂ जिस दिन उस विषय उत्ते ਅਸੀਂ प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा सिखाएगा किस रीति ਨਾਲ प्रार्थना करनी है, कितना फिर पॉइंट ਦੇ ਉੱਤੇ प्रार्थना करनी है। पर ਅਸੀਂ ਇਹ प्रार्थना ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। परमेश्वर ने बड़े ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। बहुत सारिया टैस्टमनियां आउंदियां ने उस चीज़ तो बाद। ये भी तुहाडी मेहनत का एक हिस्सा है। प्रार्थना, अगर प्रार्थना ना काम ना बने, रोजा प्रार्थना, अगर रोजे प्रार्थना ना भी काम ना बने तो फिर सुक्का रोजा प्रार्थना, मतलब जिहदे च पानी भी नहीं पीना, सिर्फ प्रेयर करनी और फास्टिंग करनी। और जो भी किसी हुण परसनली मैं दस रहा, जो भी किसी एक विषय दिते, मान लो मैं प्रेयर करनी है किसी आशीष दे लई कि मैनू खुदा ये आशीष दे, और मैं ये सोच रहा हाँ कि मैं सवेरे सुक्का रोजा रख के, हुण जिद्दां कईयां दे दिमाग च आउंदा होगा सवेरे मैं अपने विषय भी रख लेना। जे मान लो तुहाडे मन च आया है कि मैं सवेरे अपने विषय दे उत्ते सुक्का रोजा रख के प्रार्थना करनी है, ड्राई फास्टिंग, कुछ नहीं पीना, कुछ नहीं खाना, शाम नूं ही रोजा खोलना है। उस रोजे के अंदर अगर एक विषय है तो उसे विषय के उत्ते प्रार्थना करनी है, दूसरे किसी विषय को लैके नहीं होना, सिर्फ उस विषय के उत्ते पवित्र आत्मा नाल गल करनी है और पवित्र आत्मा नूं कहना कि परमेश्वर इस काम नूं करो उस विषय के उत्ते, तां जो अफेक्टेड होए हो होर असरदार हो। और बार बार जिन्ना भी टाइम मिले, ये नहीं भी आप सवेर दी 1 घंटा ला लिया तो हुण रमान नाल टीवी वेखो, आ काम करो, ये काम करो, हुण 3 बजे करांगे जो रोटी खान लगांगे। जो टाइम मिले उदों ही फास्ट प्रेयर करी जाओ उस विषय की। जिदा इत्थे वो विधवा जाती रही जिन्होंने पंजाबी च कहते ने जान खा ली उन्हें ओदी कि मेरा की लैके दे, बदला लैके दे। मैं भी कहना वा, शायद तुहानूं सुनन च चंगा नहीं लगेगा, पर मैं भी कहना खुदा दे रूह दी जान खाओ ना कि मेरा काम करके दे, मैनूं ये वाली बरकत चाहिए है। करो तो सही, मेहनत ते करो, प्रार्थना ते करो, हाथ ते हाथ धर के कुछ नहीं मिलने वाला, परौंठे खाना कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन इनू खाली रखो परमेश्वर दे लिए और वेखो फिर की हुंदा है। हालेलुया। मैं ते मेरा